Hello students of class 7th, I am Sana Ahmed. Let's start with moral science. And today we will discuss about chapter 2, praying to God. In this chapter we will learn about God. God is very kind. His blessings are always with us. God is our ultimate savior. God looks after us in all difficulties. Let's start the chapter. Chapter 2, Values, Praying to God. The story is about faith heals best. In the remote part of a hilly region, there was a small village. Leading from that village, a path led to a small church on the top of the hill. In that village, the locals called it one of the wonders of the world, even though most of them did not know what the other wonders were. एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के गांव में एक हिल पर एक छोटा सा चर्च था। उस गांव के लोकल्स में उस चर्च को दुनिया के अजूबों में से कहा जाता था, क्योंकि उन लोगों को खुद ही नहीं पता था कि दुनिया के अजूबे क्या हैं। रॉकी lived in a nearby city. His father was unwell for a long time. Someone had told him about this church. He wanted to take his father to the church. Roxy did not set out to go a pilgrimage, but that was exactly what he did. Roxy पास के ही एक शहर में रहता था। उसके पापा काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। किसी ने उसको इस चर्च के बारे में बताया, तो वो अपने पापा को भी उस चर्च में ले जाना चाहता था। तो रॉक्सी ने अपने पापा को वहाँ ले जाने का फ़ैसला लिया, लेकिन आगे जो हुआ उसने वो बिल्कुल भी सोचा नहीं था। Roxy and his father came to the village in the evening and checked into a small hotel. As Roxy inquired about the church, stories started pouring in. Everyone was full of praise about the church and its powers. In the morning, Roxy asked his father to get ready so they could leave for the church early. Roxy और उसके फादर विलेज शाम को आ जाते हैं और वहाँ पर वो एक छोटे से होटल में ठहर जाते हैं। रॉक्सी उस चर्च के बारे में और जानकारी हासिल करता है तो उसे और भी जानकारी पता चलती है। लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करते हैं चर्च की पावर्स को लेकर। अगली सुबह रॉक्सी अपने फादर को रेडी होने के लिए कहता है ताकि वो लोग चर्च के लिए लीव कर सके। As they were leaving, the owner of the hotel came to inquire about his father's health. Did you have a good night's sleep? He inquired. Oh, I slept like a baby, Roxy's father replied. The sounds of the night lulled me sleep before my head hit the pillow. वो इससे पहले चर्च के लिए जा पाते, इससे पहले चर्च का होटल का ओनर आता है और पूछता है रॉक्सी के फादर के हेल्थ के बारे में। तो पूछता है कि क्या आपने रात में अच्छी नींद ली? तो रॉक्सी के फादर कहते हैं हाँ, मैंने बहुत ही अच्छी नींद ली और ये जो रात की बहुत ही अच्छी आवाज़ें थी उससे तो मैं जैसे ही लेटा वैसे ही मैं सो गया। So you are ready for the climb of 200 steps? He asked. 200 steps? Rocky asked. Will he be able to climb? तो ओनर कहता है कि तो क्या आप रेडी हैं 200 स्टेप्स चलने के लिए? तो रॉक्सी कहता है क्या 200 स्टेप्स? क्या मेरे फादर इतना चल पाएंगे? Oh, it's where you go to find answers to whatever problems you might have in life. If you can make it all the way to the top, you will be rewarded with the statue of the Virgin Mary. People have faith and their faith has been rewarded up 10 times, the owner of the hotel clarified. ओह, तुम वहीं तो जा रहे हो जहाँ तुम्हें अपने सारे प्रॉब्लम्स का जवाब मिलेगा। अगर तुम हिल के टॉप तक पहुँच जाते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में वर्जिन मैरी का स्टैचू मिलेगा। लोगों का मानना है कि बहुत ही बार लोगों ने अपनी जो उनकी कामनाएं थी वो पूरी हुई हैं। ये होटल का मैनेजर उनको साफ साफ बताता है।
But I haven't been to church in years. So, do you only get results if you are Catholic? Roxy's father asked. No, it's the faith that counts. People belonging to all religions come here, he replied. Roxy asked for direction, and the son father duo took off to this church. On the way, they stopped at the local police station to ask the directions. It was a one room hut where the whole force of three young men were playing Ludo to pass the time. Nothing happened in that small village that required police intervention. There was a certain degree of reverence that all locals observed. It was as if any unlawful activities by residents would displease the Virgin Mary and cast a pall over their sacred city. तो रॉक्सी के फादर कहते हैं कि मैं कई सालों से चर्च नहीं गया। अगर कैथलिक नहीं हुआ तो क्या मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? होटल का ओनर कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फेथ जो होता है उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। पीपल अलग अलग रिलीजन्स को जो बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ आते हैं। फिर रॉक्सी अपने फादर को लेकर के चर्च का डायरेक्शन ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पे जा रुकता है। डायरेक्शन पूछते पूछते वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक रूम का हट है जहाँ पे 3 लोग लूडो खेल करके टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि उस छोटे से विलेज में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि अगर गलती से भी उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो क्राइम से रिलेटेड है तो उनकी सिटी जो सैक्रेड सिटी है वहाँ पर वर्जिन मैरी श्राप दे देंगी। रॉक्सी एंड हिज फादर फाइनली मेड इट to the foot of the stairs, and Roxy was speechless. His first thought was, how did they get the materials to the top of the mountains to build this monument? Roxy और उसके फादर फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो रॉक्सी एकदम स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इतने टॉप ऑफ माउंटेन में कैसे इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए मटेरियल्स पहुंचाया गया होगा। His second thought was, how would we get up there? His father had knee surgery 2 years ago and he had been suffering with constant pain of sciatica for years. Going up and down stairs was actually more painful for him than any other physical activity. However, he looked excited with an overwhelming desire to make it to the top to see the statue of Virgin Mary. रॉक्सी का सेकंड थॉट ये था कि उसके फादर का 2 साल पहले ही नी सर्जरी हुआ है और वो काफ़ी दर्द से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो वो ऐसे में ऊपर कैसे जाएंगे। यहाँ तक कि जब वो ऊपर जाएंगे तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल होगा, लेकिन वो बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे थे ताकि वो ऊपर जाएं और वर्जिन मैरी का स्टैचू देख सकें। वो उसके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। रॉक्सीज फादर said to him, I am very confused. I grew up in a Catholic household, but after I left home, I drifted away from the practice of going to church. Just now, I became aware that my Catholic upbringing is still with me. I unconsciously stated to mentally recite Hail Mary. के फादर कहते हैं कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मैं कैथलिक फैमिली में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने बिल्कुल भी चर्च जाना बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे वापस सब कुछ याद आ रहा है कि मैं अभी भी मेरे अंदर वो कैथलिक अपब्रिंगिंग है और मैं अंदर ही अंदर रिसाइट करते जा रहा हूँ हेल मैरी। सो रॉक्सी के फादर ने स्टेप करना शुरू किया। रॉक्सी ने जब ऊपर देखा तो बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ उसे दिखी, तो वो बहुत ही परेशान हो गया। लेकिन उसने देखा कि हर जगह कुछ कुछ दूरी पर ब्लू पेंट है, स्टेप्स पर पेंट किया गया हुआ है। तो उसने ध्यान से देखा तो रॉक्सी ने ये रियलाइज़ किया कि हर 10 स्टेप्स पर 10 स्टेप को ब्लू पेंट किया गया है। फिर रॉक्सी ने डिसाइड किया और अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया और ये अंदर डिसाइड किया कि वो ऊपर जाएगा और वो वर्जिन मैरी की स्टैचू को ज़रूर देखेगा, और फिर वो तुरंत ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। काफ़ी गर्म था,
बहुत ही गर्मी का मौसम था, सन एकदम आसमान पर था और कहीं भी शेड नहीं दिख रहा था। रॉक्सी और उसके फादर अब तक करीब 30 स्टेप्स चल चुके होते हैं। जितना ज़्यादा वो ऊपर जाते उतना ही और ही खूबसूरत नज़ारा उस वैली का उनको देखने को मिलता। फाइनली बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि स्टैचू को एक केस में बंद करके रखा हुआ होता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहाँ पे जो डोर होता है, एक आयरन डोर होता है, उसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। वहाँ दर्जनों की तादाद में लोग रहते हैं। कुछ लोग बेंचेस पर बैठे होते हैं, वहीं कुछ लोग ज़मीन पर लेट करके रो रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं। सब लोग एकदम शांत होते हैं। रॉक्सी और उसके फादर वहीं खड़े होकर के स्टैचू को देख रहे होते हैं। ज़रा ध्यान से देखने में उनको पता चलता है कि वहाँ पर ढेर सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स अंदर फेंके गए हैं। लोगों ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उनकी प्रेयर्स को आंसर मिल सके। दोनों वहीं खड़े हो जाते हैं और वहाँ लोगों को जो सर झुकाकर बैठे होते हैं उनको देख रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो यहाँ पर इतने सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं अपने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने। फिर उनकी नज़र एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमेन पर पड़ती है जो खुद भी इनकी तरफ देख रही होती है। वो स्माइल करती है और उसके चेहरे से मानो बहुत ही शांति महसूस होती है। वो उन दोनों को इशारा करके बेंच के पास बुलाती है ताकि और उनको बैठने के लिए जगह देती है। रॉक्सी उसको थैंक यू करने के लिए जैसे ही बढ़ता ही है, वैसे वो अपने फिंगर्स लिप्स पर रखते हुए ये सिग्नल देती है कि बिल्कुल शांत रहना है और बोलना भी बिल्कुल नहीं है। फिर रॉक्सी अपने सर को झुकाता है और फिर अपने मन में ढेर सारे थॉट्स अपने ही मन के ढेर सारे थॉट्स में खो जाता है। रॉक्सी और उसके फादर वहीं बैठे रहते हैं चर्च में और बहुत ही कामनेस एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ बैठ कर के। इतने में रॉकी को अपने शोल्डर पर एक हल्के से टैप करना महसूस करता है। तो वो जब आँख खोल कर देखता है तो वहाँ पे एक 70 ईयर्स की बूढ़ी औरत उसकी तरफ देख रही होती है। वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आँखें उसकी तरफ देख रही होती हैं। उस लेडी ने एक वाइट कलर का स्कार्फ अपने हेड की चारों तरफ फ्रेम किया होता है। रॉक्सी तुरंत खड़ा हो जाता है और उनको बैठने के लिए जगह देता है। उनका नाम एनी होता है, जो कि हर हफ्ते में 2 बार तो आती हैं ताकि उनकी दुआएं कबूल हो जाएं और कुछ चमत्कार हो जाए। उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया और उनका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि बहुत ही दूर फॉरेन में रहता है। वो हर बार ये प्रेयर करती हैं कि उनका बेटा वहाँ से वापस आए। तो रॉक्सी कहता है क्यों ना आप अपने बेटे को एक लेटर क्यों नहीं लिखती। तो एनी कहती हैं कि उनको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्जिन मैरी पे बिलीव करती हैं और वो जानती हैं कि एक दिन वो ज़रूर उनकी विश को ग्रांट करेंगी। रॉक्सी उनकी आंखों में देखता है और देखता है कि उनकी आंखों में बहुत ही इनडिफरेंट फेथ और ट्रस्ट को पाता है। वहाँ बैठने के कुछ देर बाद वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं। एनी भी वापस जाने को डिसाइड करती है। तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहे होते हैं तो रॉक्सी देखता है कि एक ओल्डर मैन अपने घुटनों पर बैठ करके अपने आर्म्स को वाइड ओपन करके अपनी वाइफ के लिए क्योर के लिए प्रे कर रहा है। वहीं एक वुमेन ऊपर से नीचे चली आ रही है और वो भी जस्टिस के लिए प्रे कर रही है। रॉक्सी की तरफ देखती है और उससे एक्सप्लेन करती है कि तुम जितना हार्डर एक्शन करोगे तुम्हें उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मॉन्यूमेंट से लेकर बाकी सारे मॉन्यूमेंट सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल ही हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो भावना है, जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वही चीज़ वर्जिन मैरी को उनका डॉक्टर, जज, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र और बेस्ट फ्रेंड बनाता है, जो उनके राज कभी भी नहीं खोलती हैं। रॉक्सी ने भी एक ऐसा ही नज़ारा आज देखा था।
जो उसके दिमाग में एक अलग ही तरह का क्वेस्ट पैदा कर रहा था. The moral of the story is God looks after us in all difficulties. He is by our side in all difficulties. His blessings are always with us. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe, and study hard.